Okay. So in the last class, we basically discussed ultrafiltration, which is the first part of urine formation. And we also discussed the structure of nephron. And in the structure of nephron, we focused upon this particular section, which was your glomerulus and your Bowman's capsule. Can you guys tell me what is the significance of glomerulus and the Bowman's capsule, or what are they collectively called? What is the name, or what is the collective name of glomerulus and the Bowman's capsule? Very good. So the Bowman's capsule and the glomerulus are collectively called either the renal corpuscle or the Malpighian corpuscle. Sometimes you might see the word Malpighian body. That's the same as renal corpuscle and Malpighian corpuscle. Now, the significance of the renal corpuscle over here is that this is the site of ultrafiltration. Now, हमारे पास हमने कल ultrafiltration को डिस्कस किया था. And in ultrafiltration, we said that हमारे पास afferent arteriole से the blood which is high in waste materials, which is high in urea, which is high in what do you say, excess mineral salts, excess water, that is coming from the afferent arteriole. And from the afferent arteriole, it is going inside the glomerulus. Glomerulus are specialized type of capillaries, because ये question अक्सर रेज होता है कि भाई glomerulus दोनों end से arteriole से कैसे connected है? How is it connected to an afferent and an efferent arteriole? Because capillaries के एक end पे तो arteriole होता है, एक end पे venule होता है. So how is glomerulus and capillary if it is connected to two arterioles? So glomerulus is a specialized form of a capillary. ये capillary क्यों है? क्योंकि ये one cell thick है. हमने कल डिस्कस किया था कि हमारे पास glomerulus की सिर्फ एंडोथीलियल लेयर होती है, एंडोथीलियम होता है, बाकी उसकी लेयर्स नहीं होती है. ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना glomerulus के पास नहीं होता. उसके पास खाली इनर लेयर होती है जो कि एंडोथीलियल लेयर होती है. और हमारे पास वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज में खाली कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स होती हैं which are one cell thick, we are just made up of endothelial cells. Now हमारे पास glomerulus is a special kind of capillary. हमारे पास glomerulus के नीचे एक Bowman's capsule है. Now there is something present between this Bowman's capsule and the glomerulus. Can you guys recall what is the layer between the glomerulus and the Bowman's capsule? Very good. It's the basement membrane. Perfect. हमारे पास जो कैपिलरीज हैं, जो एंडोथेलियल लेयर है, उसमें क्या होती हैं? फेनेस्ट्रेशंस होती हैं, एंडोथेलियल पोर्स होती हैं. उसके बाद हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है. अगेन इट आल्सो हैज माइक्रोपोर्स. एंड हमारे पास जो बोमन्स कैप्सूल है, कैन यू गाइस टेल मी बोमन्स कैप्सूल के जो सेल्स होते हैं? अच्छा, बोमन्स कैप्सूल भी खाली एपिथेलियम से बना हुआ होता है. उसका जो एपिथेलियम होता है, जो उसकी इनर मोस्ट लेयर होती है, that's one cell thick. It's made up of a layer of singular cells. Can you guys recall what cells were those? Perfect. They were podocytes. Now हमारे पास यहाँ पर podocytes होते हैं. Where is the diagram? Over here. So you see, we have the glomerulus. We have the glomerulus. Glomerulus के नीचे हमारे पास एक basement membrane है. और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास हमारा पूरा Bowman's कैप्सूल स्टार्ट हो जाता है. और Bowman's कैप्सूल जो है, that is made up of epithelial cells, specialized form of epithelial cells, जिनको हम क्या बुलाते हैं? हम लोग जिन्हें पोडोसाइट्स बुलाते हैं. एंड अगर आप लोग ऑब्जर्व करो, ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि पोडोसाइट्स के बीच में हमारे पास गैप्स हैं, हमारे पास स्लिट्स हैं. हमारे पास जो फेनेस्ट्रेशंस होती हैं, जो कि कैपिलरी के पोर्स होते हैं, हमारे पास जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और जो हमारे पास फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती हैं बिटवीन द पोडोसाइट्स, ये तीन चीजें कलेक्टिवली हमारा फिल्ट्रेशन बैरियर बना रही होती हैं. Now this is the afferent arteriole, this is the efferent arteriole. You guys can observe कि हमारे पास जो efferent arteriole है, उसका जो diameter है, that is greater, और जो efferent arteriole है, उसका जो diameter है, that is smaller. तो हमारे पास blood यहाँ पर हाई प्रेशर के साथ आ रहा है. यहाँ पर बिकॉज द
व्हाट यू से द डायमीटर इज स्मॉलर, हमारे पास यहाँ पर जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो एक रेजिस्टेंस, एक ऑपोजिशन फेस करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास एक तरह से लो प्रेशर है या हमारे पास रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो है. Because of this difference in blood pressures, or because of this because of this difference in diameters between the afferent and the efferent arteriole, हमारे पास एक internal हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्डअप होता है. जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्डअप होता है तो हमारे पास जो ग्लोमेरुलस है उसके बीच में जो उसके ऊपर जो हमारी फेनेस्ट्रेशंस प्रेजेंट है, वहां से हमारे पास जो ब्लड है, ब्लड का जो स्मॉल कंटेंट है, जिसमें से आपका प्लाज्मा आ जाता है, जिसमें आपके ग्लूकोज आ जाते हैं, अमीनो एसिड्स आ जाता है, यूरिया आ जाता है, मिनरल सॉल्ट्स आ जाते हैं, ये सारी चीजें जो हैं दे स्टार्ट टू गेट फिल्टर्ड आउट. उसके बाद हमारे पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं विच आर अनएबल टू क्रॉस द बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो वो वापस रिवर्ट हो जाती हैं इनसाइड द ग्लोमेरुलस. दो चीजें बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी क्रॉस कर लेती हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट्स को भी क्रॉस कर लेती हैं. वो इवेंचुअली हमारा क्या बन जाता है, वो हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन जाता है. और यही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आगे जाके आपका यूरिन बनाएगा. अब वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट किस तरह से यूरिन बनाता है, वो पूरा रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हम आज देख रहे होंगे. बट इज द process of ultrafiltration clear to all of you? Any questions about this? Perfect. Now, let's move towards selective reabsorption. अच्छा, अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमारे पास हमें ब्लड से ना वेस्ट मटेरियल निकालना था, जो भी एक्सेस वाटर था, एक्सेस क्या कहते हैं सॉल्ट्स थे, यूरिया था, वी हैड टू गेट rid of all of that. So if we're getting rid of all of that, what is the purpose of reabsorption? हमें क्यों चीजें वापस चाहिए? Now हमारे पास जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को हम एक पैसिव और प्रेशर डिपेंडेंट प्रोसेस बुलाते हैं. These are the two words that you use, the two terminologies that you have to use to describe ultrafiltration. It's a passive process and it is a pressure dependent process. Passive क्यों है? क्योंकि कोई भी energy in the form of ATP utilize नहीं हुई है. प्रेशर डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि हमारे पास फिल्ट्रेशन, हमारे पास चीजें फिल्टर आउट ब्लड से तभी होंगी जब हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर बिल्डअप होगा इनसाइड द ग्लोमेरुलस. वो प्रेशर फोर्स आउट करेगा, पुश आउट करेगा हमारे फ्लूइड को, हमारे क्या कहते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स को आउट ऑफ द blood in the capillaries and inside the Bowman's capsule. So ultrafiltration is a passive and a pressure dependent process जिसके थ्रू हमारे small molecules get filtered out of the blood. Okay, I'll repeat. अल्ट्राफिल्ट्रेशन हमारे पास एक पैसिव प्रोसेस इसलिए है बिकॉज किसी भी पॉइंट पर हमने ये नहीं कहा या हमने नहीं ऑब्जर्व किया कि एटीपी यूज हुआ हो इन द एज द एनर्जी करेंसी. देयर इज नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, कहीं पर भी हमने एटीपी कंजम्पशन नहीं देखी. सो इट्स अ पैसिव प्रोसेस, इट इज नॉट एन एक्टिव प्रोसेस. प्रेशर डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि हमारे कल ही हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स is the reason why things are able to get filtered out of the blood and enter into the Bowman's capsule. Do you remember that? So अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, अगर प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा, तो हमारे पास जो ब्लड के अंदर चीजें हमें निकालनी है, पुश आउट करनी है, फिल्टर करनी है, वो फिल्टर होएंगी नहीं. सो जब तक प्रेशर हमारे पास बिल्डअप नहीं होगा तब तक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती है. Ultrafiltration depends on the pressure that is created within the glomerulus for the things to get filtered out. अच्छा जी, सो हमारे पास ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये सब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं. दे कैन इजिली क्रॉस द फिल्ट्रेशन बैरियर एंड एंटर इनटू द बोमन्स कैप्सूल. हमारे पास बहुत ज्यादा फ्लूइड कंटेंट फिल्टर आउट हो जाता है. एंड बाय बहुत ज्यादा, अगर हम देखें ना कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जब हमारे पास होती है और जब हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जाता है इनसाइड द बोमन्स कैप्सूल, वो ऑलमोस्ट एक दिन में जितना आपका ब्लड फिल्टर हो रहा होता है इन योर रीनल कॉर्पसल, दैट इज अबाउट between 140 to 180 लीटर्स. तो आपका जो फिल्ट्रेट होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, दैट इज 140 to 180 लीटर पर डे.
विच मीन्स जो हमारी 1 लीटर की वाटर बॉटल्स होती है ना, वैसे 140 या 180 बॉटल्स आप भर दो पूरी, इतना ज्यादा हमारे पास ब्लड फिल्टर हो रहा होता है इन द रीनल कॉर्पसल, इन द मेल्फिजियन बॉडी। अब किसी भी नॉर्मल ह्यूमन का इतना ज्यादा यूरिन नहीं पास होता इन द डे, बिकॉज अगर इतने लीटर्स ऑफ फ्लूइड हम रोजाना की बेसिस पर लूज कर रहे होंगे, सो हम बहुत इजीली डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे एंड सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, एग्जैक्टली डेथ कॉज हो जाएगी। सो दिस इज लीथल, वी कैन नॉट लूज सो मच ऑफ वाटर बिकॉज लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर, 60% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। सो इतना ज्यादा एक तो हम फ्लूइड क्या कहते हैं लूज नहीं कर सकते, दैट इज नॉट समथिंग दैट इज फेवरेबल। एंड हमारे पास जो ये यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, ये हमारी बॉडी को चाहिए। अमीनो एसिड्स क्यों चाहिए? वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स आर बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। इन अमीनो एसिड्स से हमारी बॉडी के जितने भी यूजफुल प्रोटीन्स हैं, हीमोग्लोबिन हो गया, एंजाइम्स हो गया, कोलेजन हो गया, अमीनो एसिड से ये सारे प्रोटीन्स बनने होते हैं सेल में जाकर। ग्लूकोज हमें क्यों चाहिए? ग्लूकोज वी नीड फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सो ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स हमारे पास, वी कैन नॉट लूज देम। अगर किसी के यूरिन में गॉड फॉरबिड ग्लूकोज आ रहा है या अमीनो एसिड आ रहा है, दैट इज अ रेड फ्लैग फॉर एनी इंटरनल मेडिकल प्रॉब्लम, बिकॉज नॉर्मल यूरिन में कभी भी ग्लूकोज और अमीनो एसिड नहीं आता। Now, because exactly, अगर ग्लूकोज आ रहा है आपके यूरिन में, दैट इज लाइक अ रेड फ्लैग एंड अलार्म साइन फॉर डायबिटीज। सो हमारे पास ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स जो फिल्टर आउट हो रहे हैं, हमें वो वापस चाहिए। जो इतना ज्यादा पानी हमारा फिल्टर आउट हो गया है, हमें वो वापस चाहिए। कभी कभार हमारे पास मिनरल सॉल्ट्स भी बहुत ज्यादा लीक आउट कर जाते हैं। अब इतने ज्यादा मिनरल सॉल्ट्स हमें वेस्ट नहीं करने। मिनरल सॉल्ट्स आर बेसिकली योर इलेक्ट्रोलाइट्स, योर आयंस। यू नीड पोटेशियम, यू नीड सोडियम, यू नीड कैल्शियम, यू नीड मैग्नीशियम। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं, क्लोराइड आपकी बॉडी को चाहिए होता है। तो अगर ये भी बहुत सारे हम लूज कर देंगे, तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हमारे पास ये जो सारे आयंस हैं, ये हमारी न्यूरल जो भी नेटवर्किंग है उनको मेंटेन कर रहे होते हैं। हमें उसके लिए चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है, पोटेशियम चाहिए होता है, सोडियम चाहिए होता है। सो इफ यू आर लूजिंग सो मेनी मिनरल सॉल्ट्स, हमारी जो न्यूरल नेटवर्किंग है वो भी अफेक्ट हो सकती है। और हमारे पास स्मॉल प्रोटीन्स भी लीक आउट कर सकते हैं। ना, व्हाट डू आई मीन बाय स्मॉल प्रोटीन्स? एनी प्रोटीन which is less than 68 किलो डाल्टन्स, वो प्रोटीन्स हमारे पास फिल्ट्रेशन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। ये वैल्यू आपको नहीं पता होना चाहिए, बट हमारी बॉडी में कुछ बहुत बड़े प्रोटीन्स होते हैं विच आर ग्रेटर देन 68 किलो डाल्टन्स, उनको हम लार्ज प्रोटीन्स बुला रहे होते हैं। और जो स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं, दे आर लेस देन 68 किलो डाल्टन्स, वो हमारे फिल्ट्रेशन बैरियर से क्रॉस करके फिल्ट्रेट का पार्ट बन जाते हैं। हमें ये भी वापस चाहिए। तो ये जो सारे यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, हमें इनको वापस अपने ब्लड में एंटर करना है। What does Dalton means? Dalton is like another way of measuring MR. It's like a unit. It's a unit of you can say weight या MR का unit होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो हमें ये सब रीअब्सॉर्ब करवाने हैं। सो हमारे पास जो सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होती है, एज द नेम सजेस्ट, इट्स अ सिलेक्टिव प्रोसेस। हमें सब कुछ वापस नहीं चाहिए। अगर सब कुछ ही वापस रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, तो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन? सो वी ओनली नीड टू पिक एंड चूज सर्टेन थिंग्स दैट वी रिक्वायर, दैट द किडनीज थिंक और द ब्लड थिंग्स की ये वापस चाहिए, ब्लड को इसकी जरूरत है। तो रीअब्सॉर्प्शन इज ए सेलेक्टिव प्रोसेस। अगर आप इधर देखो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज नॉट अ सिलेक्टिव प्रोसेस, क्योंकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, एक तरह से आप समझो ब्लड को ना धक्का पड़ रहा है कि भाई जगह नहीं है आगे जाने की, तुम अपनी कोई और जगह ढूंढो। सो जो फ्लूइड है वो लीक आउट कर रहा है, तो वहां पे कोई सिलेक्शन नहीं हो रही। सिलेक्शन अगर हो रही है तो इस बेसिस पे हो रही है कि कौन सी चीज इस काबिल है कि वो फिल्ट्रेशन बैरियर को क्रॉस कर सके। कोई so it's like a very it's not a very selective process. If you are like able enough to cross the filtration barrier, there you go. बट वहां पर ये मॉनिटरिंग नहीं हो रही कि ये यूजफुल चीज हमारी लीक आउट की है या नॉन यूजफुल चीज लीक आउट की है। ये मॉनिटरिंग, ये रेगुलेशन कहाँ पर आती है? ये रेगुलेशन हमारे पास आ रही होती है सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन में। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज नॉट अ सेलेक्टिव प्रोसेस, it's a passive and a pressure dependent process, and anything which can cross the filtration barrier would get filtered out. However, the selective reabsorption process is selective,
एंड इट इज ऑल्सो एन एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस क्यों है ये हम आगे चल के देख रहे होंगे। यहाँ पर हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास जब भी होता है हमारे पास उसके लिए एटीपी चाहिए होता है। सो इट इज एन एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑब्जर्व करेंगे। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है? ये हमारे पास होती है पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो रही होती है। हमारे पास क्या क्या चीजें सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो रही होती हैं? सारे का सारा ग्लूकोज वापस हम ब्लड को भेज रहे होते हैं, अमीनो एसिड्स वापस ब्लड के पास जा रही हैं, स्मॉल प्रोटीन्स वापस ब्लड के पास जा रहे हैं। सो ये तीन चीजें तो 100% हमारे पास रीअब्सॉर्ब हो रही होंगी। हमारे पास एज आई मेंशन्ड एक ग्लोमेरुलर, एक पूरे दिन में हमारे पास हम 140 टू 180 लीटर्स ऑफ फ्लूइड को नेफ्रॉन्स जो है वो फिल्टर कर रहे होते हैं। उतना ज्यादा पानी हमें लूज नहीं करना। तो 66% ऑफ द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हैज टू बी रीअब्सॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड, क्योंकि अगर इतना ज्यादा वाटर लॉस हो गया तो हमारे पास तो जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, बहुत ब्लड लॉस हो जाएगा, सॉरी बहुत वाटर लॉस हो जाएगा, विच इज लीथल। फिर हमारे पास आयंस भी 66% रीअब्सॉर्ब हो रहे होते हैं। सो वी नीड द more than 60% water back, we need more than 60% ions back. So ये सारी चीजें selectively reabsorb हो रही होती हैं कहाँ पर? In the PCT. Any questions so far? चलिए अब हम आ जाते हैं PCT पर। अच्छा जी, नाउ मैं इसके बाद खुद भी ड्राइंग करने की कोशिश करूंगी। ये तो मैंने इंटरनेट से उठाई है, बट प्लीज डोंट जज माई ड्राइंग व्हेन आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ अ पीसीटी सेल। आई एम पैथेटिक एट ड्राइंग। बट पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं कि डायग्राम हमें क्या बता रही है। हमारे पास यहाँ पे आपको दो सेक्शन नजर आ रहे होंगे। एक आपको पीसीटी ल्यूमेन नजर आ रहा है। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज अ ल्यूमेन? ल्यूमेन से क्या अंडरस्टैंडिंग है? एएस में ल्यूमेन सुना होगा, ओ लेवल्स में ल्यूमेन पढ़कर आ रहे हो। व्हाट इज अ ल्यूमेन? हाउ डू यू डिफाइन और अंडरस्टैंड ए ल्यूमेन? अच्छा जी, नो सेल कंटेंट, हॉलो, और क्या है? लेट मी ओपन द चैट बॉक्स। राइट, सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर देयर। ल्यूमेन हमारे पास एक हॉलो एरिया है। हमारे पास इट्स लाइक, देखो पाइप होता है, ये एक पाइप है, जो पानी का पाइप होता है, कोई भी पाइप है, पाइप के बीच की जो जगह होती है वो हॉलो होती है, जिसके थ्रू क्या चीज पास कर रही होती है? आपका फ्लूइड पास कर रहा होता है। सो ल्यूमेन हमारे पास वो हॉलो एरिया है जहां से हमारे पास फ्लूइड कैन मूव। बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस डायग्राम, लेट्स जल्दी से सी द स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन। हमारे पास नेफ्रॉन के अगर हम देखें तो एक तो हमारे पास ये वाला सेक्शन है जिसमें हमारे पास पीसीटी आ जाता है, लूप ऑफ हेनले आ जाता है, डीसीटी आ जाता है, और हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है। और दूसरा क्या सेक्शन है? दूसरा हमारे पास वैस्कुलर सेक्शन है, जहाँ पे हमारे पास वो है, क्या कहते हैं, हमारी आर्टीरियोल्स हैं, कैपिलरीज हैं और वेन्स हैं। इफ यू कैन ऑब्जर्व, हमारा जो पीसीटी है, हमारा जो क्या कहते हैं लूप ऑफ हेनले, और हमारा जो डीसीटी है, दे हैव अ ब्लड सप्लाई, अ नेटवर्क ऑफ ब्लड सप्लाई अराउंड देम। कैन यू ऑब्जर्व दिस? कि हमारे पास जो पूरा टिब्यूलर सेगमेंट है नेफ्रॉन का, जिसमें आपका डीसीटी, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले आ जाता है, वो पूरा टिब्यूलर सेगमेंट इज रैप्ड और इज कंटिन्यूअस विद वैस्कुलर सेगमेंट्स। वैस्कुलर क्या होता है? वैस्कुलर हमारे पास जो वेसल्स होती हैं उनको हम वैस्कुलर सेगमेंट्स बुला रहे होते हैं, वैस्कुलर सिस्टम बुला रहे होते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? हम इतनी देर से क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास चीजें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में चली गई हैं, या सो बेसिकली हमारे पास हमारा, इफ यू कुड सी, जो रेड वाला एरिया है ना, रेड वाला एरिया और लाइक योर यहाँ पर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला पार्ट है कैपिलरीज का, और ये आपका फिर वेन्यूज वाला पार्ट है जो आपका डीऑक्सीजनेटेड पार्ट है। सो यस, द वैस्कुलर सिस्टम, जो हमारे पास ब्लड सिस्टम है विच इज कंटिन्यूअस विद द नेफ्रॉन, दैट इज योर वैस्कुलर सिस्टम। जो ये आपको डार्क रेड ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं और ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं। सो हमारे पास पूरा जो नेफ्रॉन्स की ट्यूब्स हैं, दे आर कंटिन्यूअस विद योर ब्लड वेसल्स। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? हम इतनी देर से ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहाँ पर बना? यहाँ पर हमारे पास फिल्ट्रेशन हुई,
और यहाँ से हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो नेफ्रॉन की जो भी हमारे पास पीसीटी है और लूप ऑफ हेनले है, उसके बाद क्या कहते हैं डीसीटी है, उससे मूव कर रहा है। नाउ वी आर कंटिन्यूसली सेइंग दैट हमारे पास जो एक्सेस वाटर, जो हमारे पास बहुत ज्यादा वाटर चला गया है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, जो ग्लूकोज चला गया है, जो अमीनो एसिड चला गया है, वो वाटर वो वापस करना है ब्लड को। अब अगर तो मेरे पास ब्लड सप्लाई कंटिन्यूस नहीं होती नेफ्रॉन के ट्यूब्स के साथ, तो मेरे पास इनटू रैंडम स्पेस तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अपना क्या कहते हैं कंटेंट नहीं छोड़ेगा वापस कि मैजिकली वो ब्लड के पास चला जाए। ब्लड वेसल्स हैव टू बी देयर। ब्लड वेसल्स होंगी तभी हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट है या जो हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन है फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन। ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन की क्या बात हो रही है, जो हमारे पास डीसीटी और पीसीटी हो गए, इनसे जो चीजें वापस ब्लड में जानी है वो तभी ब्लड में वापस जा सकती हैं जब ब्लड सप्लाई मौजूद हो, जब नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज मौजूद हो। सो जो नेफ्रॉन का ट्यूब्यूलर सेगमेंट है that is continuous with the vascular system of the blood as well. Are we all clear so far? कोई क्वेश्चन अभी तक? लास्ट पॉइंट रहमत क्या नहीं समझ आया? अच्छा, हमारे पास लास्ट पॉइंट में मैंने शायद ये बोला था कि जो नेफ्रॉन्स के सारे ट्यूब्यूल्स हैं दे आर कंटिन्यूअस, या फिर उनके अराउंड हमारे पास ब्लड सप्लाई है, ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं। राइमा, ये नजर आ रहा है? ये क्यों होना जरूरी है? हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि जो भी चीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में चली गई है और वो ब्लड में वापस आनी है, वो हमने लूज नहीं करनी, वो बॉडी को वापस चाहिए। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से अगर ब्लड में किसी चीज ने वापस रीअब्सॉर्ब होना है, ब्लड में वापस री एंटर होना है, तो उसके री एंटर होने के लिए जो नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स हैं उसके साथ कंटिन्यूस होना चाहिए ना नेटवर्क ऑफ ब्लड सप्लाई, ताकि हमारे पास मूवमेंट हो सके फ्रॉम द ट्यूबुलर सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन इनसाइड बैक इनसाइड द ब्लड। परफेक्ट। अच्छा जी, सो हम यहाँ पर थे, हमारा सफर यहाँ तक पहुंचा था कि हमारे पास जो ग्लोमेरुलस सॉरी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, अगर उससे हमें चीजें वापस चाहिए तो हमारे पास जो ट्यूबुलर सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन है उसके साथ कंटिन्यूस होना चाहिए ब्लड सप्लाई। अच्छा जी, अब हमारे पास सी ये पीसीटी की वॉल है। अब मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ, आई वॉन्ट एवरी वंस अटेंशन ओवर हियर। नो गॉसिप, नो यापा यापा इन द चैट बॉक्स। एवरीबॉडी कम हियर प्लीज। Give me a thumbs up that I have your attention. Good. अच्छा, सिर्फ 3 लोगों की अटेंशन आई है, बाकी 7 8 people, what are you guys up to? चलो ठीक है, आ रही है अटेंशन, आ रही है। गुड। नाउ लुक एट माई पेन बिकॉज थोड़ा सा ये मेरे पास क्या है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ठीक है, ये मैंने एक सेक्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हाईलाइट किया। इसके बीच में हमारे पास क्या होगा, पीसीटी का ल्यूमेन होगा। इस पीसीटी के ल्यूमेन से क्या गुजर रहा होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट गुजर रहा होगा। ये बीच में हमारे पास जो ट्यूब्यूल है वो हॉलो है, इसका सिर्फ ल्यूमेन है। और इसके साथ क्या कंटिन्यूस है, हमारे पास जो कैपिलरी है वो कंटिन्यूस है। Now, keep this in your mind that the walls of the PCT and the walls of the capillary are continuous. और ये जहन में रखते हुए we will understand this diagram. Now, ये PCT lumen है, ये PCT ल्यूमेन है और ये पीसीटी की वॉल है। ठीक है, दिस इज द पीसीटी वॉल। तो यहाँ पर जो मैंने ग्रे से हाईलाइट किया है ना इन द नेफ्रॉन, आने देते हैं हम हमारी डायग्राम को जरा जगह पे। सो जो ये ग्रे से मैंने हाईलाइट किया वॉल, इस वॉल का एक सेक्शन, इस वॉल के एपिथेलियल सेल्स हम देख रहे हैं अगली डायग्राम में। एंड इफ वी लुक एट दो सेल्स, ये कुछ इस तरह के दिखते हैं। तो जो हमारे पास सेल्स हैं पीसीटी वॉल के, ये हमारे पास कैसे दिखते हैं, ये ऐसे दिखते हैं। और ये हमारे पास पीसीटी ल्यूमन है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे हमारे पास फ्लूइड प्रेजेंट होगा, जो कहाँ से आ रहा है, जो हमारे पास आ रहा है मेलफीजियन बॉडी से। तो हम बल्कि रीनल कॉर्पस लिख देते हैं। सो रीनल कॉर्पस से हमारे पास फ्लूइड आ रहा है, फिल्ट्रेट आ रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट।
जिसको क्योंकि अब ये ल्यूमन में एंटर कर गया है, इन द ल्यूमन ऑफ द पीसीटी, इसको हम ल्यूमिनल फ्लूइड भी बुला सकते हैं। तो यहां हमारे पास क्या है, ल्यूमिनल फ्लूइड है। ठीक है, दिस इज द ल्यूमिनल फ्लूइड, दिस इज योर ब्लड। ये आपके ब्लड के एंडोथेलियल सेल्स हैं। ब्लड के एंडोथेलियल सेल्स के बीच में हमारे पास क्या है, हमारे पास एंडोथेलियल पोर्स हैं, जिनको हम क्या बुलाते हैं, फेनेस्ट्रेशंस बुलाते हैं। वी कैन कॉल इट रीनल फ्लूइड। आई एम नॉट श्योर अमर, आई विल लुक इट अप इफ इट इज कॉल्ड रीनल फ्लूइड और नॉट। इसको या तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बुलाते हैं, ल्यूमिनल फ्लूइड बुलाते हैं, बट आई सी अगर इसको हम रीनल फ्लूइड बुला सकते हैं कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, आई कन्फर्म। किसको फेनेस्ट्रेशन बुलाते हैं, राहिमा, एएस बायोलॉजी, फेनेस्ट्रेशन कहाँ पढ़ा था? फेनेस्ट्रेशन तो हम एएस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एंडोथेलियल पोर्स याद है, कैपिलरी जो होती है उसके पोर्स होते हैं। You guys haven't heard fenestrations before? अच्छा, आपके पास जो एंडोथेलियल पोर्स होते हैं, उन एंडोथेलियल पोर्स को फेनेस्ट्रेशंस बुलाते हैं। चलो, अच्छा, यू गाइस आरंट अवेयर ऑफ फेनेस्ट्रेशंस, चलो इनको एंडोथेलियल पोर्स बुला लेते हैं। पर जिसने मेरे साथ एएस पढ़ी है उसको तो एंडोथेलियल पोर्स पता, ओ सॉरी, फेनेस्ट्रेशंस पता होने चाहिए। मैं तो हमेशा इनको फेनेस्ट्रेशंस बुलाती हूँ, पर चलो कोई बात नहीं, आप लोग इनको एंडोथेलियल पोर्स बुला लो। तो हमारे पास जो हम यू ड्रॉ कर रहे होते हैं ना, ये कैपिलरी है, और कैपिलरी के बीच में जो हम छोटे छोटे सुराख बना देते हैं, सी ये कैपिलरी जा रही है, और ये जो छोटे छोटे सुराख हम बना देते हैं, वो जो सुराख है वो हमारे पास एंडोथेलियल पोर्स या फेनेस्ट्रेशंस होते हैं। अब क्लियर हो गया कि ये क्या है? परफेक्ट। या एंडोथेलियल गैप्स भी बुला सकते हैं, एंडोथेलियल पोर्स, बट अगर खाली गैप्स नहीं बुलाना। यस, थिंग्स लीक आउट ऑफ फेनेस्ट्रेशंस। हमारे पास एएस में हमने पढ़ा था ना कि कैपिलरी वॉल्स के जो पोर्स होते हैं उनसे हमारे पास प्लाज्मा निकलता है, उनसे हमारे पास डब्ल्यूबीसीज एस्केप कर रहे होते हैं, स्मॉल प्रोटीन्स एस्केप कर रहे होते हैं जो कि टिश्यू फ्लूइड बना रहे होते हैं। सो ब्लड से जो टिश्यू फ्लूइड बनता है वो कैसे बनता है? थ्रू व्हाटएवर इज एग्जिटिंग आउट ऑफ दीज फेनेस्ट्रेशंस। ठीक है। हमारे पास, आप अगर देखो, ये जो हमारे पास पीसीटी वॉल के सेल्स हैं, इनको पोडोसाइट से कंफ्यूज नहीं करना। सबसे पहले तो पोडोसाइट्स हमने कहाँ पढ़ा है? कौन मुझे बताएगा पोडोसाइट्स कहाँ पढ़ा है? Who has been attentively listening to our classes? कल पढ़ा था, हाँ, पेपर में लिख कर आना कि हमने इस डेट पे मिस जोहा के साथ कल पढ़ा था। इन अल्ट्राफिल्ट्रेशन, इन अल्ट्राफिल्ट्रेशन नहीं, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, एग्जैक्ट लोकेशन। Not glomerulus, very good, Amar. The epithelium of the Bowman's capsule, they are your porocytes. Bowman's capsule wall, porocytes. Yes, Bowman's capsule wall is made up of porocytes. Basement membrane के बाद आता है, बिल्कुल बाद आता है, लेकिन exact location अगर आपने लिखनी है तो आप बोलोगे the epithelial cells of the Bowman's capsule are called porocytes. These are not your porocytes. Please, मुझे पता है शक्ल मिलती है, बट ये porocytes नहीं है। ठीक है, पोरोसाइट्स वोमेन्स कैप्सूल में पड़े थे, वोमेन्स कैप्सूल में ही उनको रहने देते हैं। यहाँ पर हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेल्स हैं ऑफ द पीसीटी वॉल। अब इन आज हम सिर्फ, हमारे पास अभी कितनी देर है, हमारे पास अभी 20 मिनट्स है, अभी हम सिर्फ इन सेल्स को समझेंगे। ये एक सेल जो है ना, इस एक सेल हमने बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि कल अगर हमें इन सारी चीजों की रीअब्जॉर्प्शन समझनी है तो वो यहीं पे इन्हीं सेल्स के थ्रू हो रही है। देयर लाइक द ब्रिज यू कैन से बिटवीन द ल्यूमिनल फ्लूइड एंड द ब्लड। अच्छा, हमारे पास थोड़ा सा कोई फर्क नजर आ रहा है बिटवीन ये ए वाली लेयर और बी वाली लेयर? परफेक्ट। तो जब मैं 0.5x पे चल रही थी तब मेरी बातें समझ आ रही थी या नहीं समझ आ रही थी, वो रिपीट करूं? Anybody who wants me to repeat what I was saying before, try, it's fine. ठीक है, ओके। मैंने ए और बी दो साइज लेबल की हैं सेल की। इन दो साइज में फर्क नजर आ रहा है सबको कि एक में हमारे पास कर्वी सा, क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन, और एक तरफ हमारी थोड़ी फ्लैट सी प्रोजेक्शन है। ठीक है, हमारे पास जो कर्वी प्रोजेक्शन हैं इनको हम क्या बुलाते हैं, माइक्रोविलाई बुलाते हैं। माइक्रोविलाई ओ लेवल्स में भी पढ़ा होगा जब डाइजेशन का चैप्टर पढ़ा होगा और एब्जॉर्प्शन पढ़ी होगी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में।
और माइक्रोविलाई एएस में भी सेल के चैप्टर में पढ़ा होगा। सो माइक्रोविलाई जो है वो हमारे पास ल्यूमिनल फ्लूइड को फेस कर रहे होते हैं, या पीसीटी के ल्यूमन को फेस कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और बात बताओ, माइक्रोविलाई जो होते हैं वो एक्चुअली क्या होता है? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइक्रोविलाई? वेरी गुड, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, किस चीज का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं? सो यू गेट हाफ अ मार्क फॉर द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड यू। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं फॉर, अच्छा जी, तो बहुत सारे मैसेजेस एक साथ आ रहे हैं, एक सेकेंड एक एक करके पढ़ती हूँ। They increase the surface area for reabsorption, ठीक है। Finger-like projections which increase surface area for absorption to increase surface area. यस यस, ओ लेवल से यही लिखवाते आ रहे हैं, बिल्कुल यही रीजन है। सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज द सरफेस जहां पे एब्जॉर्प्शन हो रही होती है? पूरी बायोलॉजी में जो हमारे पास डिफ्यूजन हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो किस सरफेस के थ्रू हो रहा होता है? वेरी गुड मिशाल, सेल सरफेस मेम्ब्रेन। तो हमारे पास माइक्रोविलाई और बेसिकली, क्वेश्चन ही समझ लगी मिस, हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा था, सिंपल डिफ्यूजन पढ़ा था, ऑस्मोसिस पढ़ा था, बल्क ट्रांसपोर्ट पढ़ा था। ये सारे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं बायोलॉजी में रहमा। तो ये सारे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स किस चीज के अक्रॉस हो रहे होते हैं बायो में? सेल सरफेस मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रहे होते हैं, राइट? सेल्स के थ्रू जब भी हमारे पास मूवमेंट हो रही होगी वो हमेशा सेल सरफेस मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही होगी। बेहतरीन बात हो गई। सो हमारे पास जो माइक्रोविलाई वाला पार्ट है, that is basically facing the luminal fluid, the PCT lumen, and ये जो हमारे पास फ्लैट डिजिट लाइक पार्ट है, ये आपके कैपिलरीज को फेस कर रहा है। ना अच्छा, ये चीज आई वुड प्रेफर अगर याद कर लो, जिंदगी अपने लिए ही आसान कर लोगे। हमारे पास जो मेम्ब्रेन ल्यूमन को फेस कर रही होती है, एक सेल की अगर देखो, अगर मेरे पास एक सेल मैं ड्रॉ करूं, तो उसकी मेम्ब्रेन्स के ना बहुत सारे साइड्स होंगे। लाइक ऑब्वियसली हमारे सेल्स जो हैं वो 3D स्ट्रक्चर्स हैं। सो हमारे पास 3D में हमारी सेल मेम्ब्रेन भी एग्जिस्ट कर रही होगी। यहाँ पर दो साइड्स को अच्छे से समझ लो। एक साइड है जो कि किस चीज को फेस कर रही है? कैपिलरीज को फेस कर रही है। एक सेल सरफेस मेम्ब्रेन की साइड है जो फेस कर रही है ल्यूमन को। द सेल सरफेस मेम्ब्रेन फेसिंग द ल्यूमन, जो बी है ना हमारा, उसको हम ल्यूमिनल मेम्ब्रेन बुलाते हैं। और हमारे पास जो मेम्ब्रेन फेस कर रही होती है, क्या कहते हैं, कैपिलरीज को, इसको हम बेसल मेम्ब्रेन या बेजो लैटरल मेम्ब्रेन बुलाते हैं। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट ये मैं कल बताऊंगी, बट अपनी जिंदगी आसान करने के लिए याद रख लो कि जो हमारे पास मेम्ब्रेन का वो पार्ट जो ल्यूमन को फेस कर रहा है, ल्यूमिनल फ्लूइड को फेस कर रहा है, उसको हम ल्यूमिनल मेम्ब्रेन बुलाते हैं। और मेम्ब्रेन का वो पार्ट जो कि हमारे ब्लड को फेस कर रहा है, वो हमारे पास बेसल मेम्ब्रेन या बेसोलेटरल मेम्ब्रेन होता है। अमार याद करना जरूरी है कि नहीं, दैट आई कांट से फॉर श्योर, बट मुझे ये पता है कि अगर याद कर लोगे तो कल जब पूरा मैकेनिज्म समझेंगे ना रीअब्जॉर्प्शन का, तो आप ही की जिंदगी आसान हो जाएगी। तो मैं कहूंगी कि याद कर लो। कल हम फिर से इसको ओवर व्यू कर रहे होंगे तो याद हो जाएगा। यूजुअली रीअब्जॉर्प्शन इज लाइक वन क्लास का चैप्टर। एक तो वैसे ही मैंने, सॉरी, 20 मिनट्स लेट क्लास स्टार्ट की, तो हम आज की क्लास में नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। एंड अगेन मैं इसको दो क्लासेस में डिवाइड करना चाहती थी ताकि दो क्लासेस में हमें अच्छे से याद हो जाए। अच्छा जी, ये एक वाहिद चैप्टर है। और शायद कोऑर्डिनेशन कंट्रोल जो मैं स्टोरी की तरह याद करवाती हूँ या स्टोरी की तरह सुना रही होती हूँ, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है दोनों चैप्टर्स। अच्छा, बीच में आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हमारे पास जो ये सेल्स हैं, इन सेल्स के बीच में एक समझ लो टेप लगा हुआ है, ठीक है, या ग्लू का, आपने यूएचयू से खेलते थे ना बचपन में, यूएचयू की बॉल्स बनाते थे, तो वो बॉल्स हैं बीच में। और इन बॉल्स को हम कहते हैं टाइट जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है पॉइंट वेयर टू थिंग्स आर मीटिंग। तो हमारे पास जो ये सारे सेल्स है ना वॉल के, लिक्विड ग्लू से कभी बॉल नहीं बनाई हाथों पे खेल खेल कर? अगर नहीं बनाई, सो आई डोंट नो व्हाट चाइल्डहुड यू वर लिविंग। सो ये उन वैसी जो बॉल्स हैं, या आई ऑल्सो डू दैट व्हेनेवर आई गेट अ न्यू यूएचयू ट्यूब, आई डू दैट। I love it. And I also love the smell of UHU. See, very good. I approve. बहुत अच्छी smell होती है। अच्छा, back to the tight junctions. Forget the UHU. सिर्फ याद करने के लिए याद रखना,
टाइट जंक्शंस क्या हैं? यूएचयू बॉल्स हैं, ठीक है। जो यूएचयू बॉल्स हैं, यूएचयू क्या करती है? दो चीजों को टाइटली होल्ड करती है। तो हमारे पास अब देखो छोटा छोटा जो ये गैप है ना, इस गैप के थ्रू हमारा ल्यूमिनल फ्लूइड लीक कर सकता है। अब लीकेज हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमने क्या, प्रोसेस का क्या नाम है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। अगर गैप से ऐसे नहीं पतली गली से निकल जाए कोई चीज, तो ये तो मसले की बात हो जाएगी। हमें देखना है कि वो चीज को वापस अंदर जाना भी है कि नहीं जाना, ठीक है। तो इसलिए ये टाइट जंक्शंस चाहिए ना। हमारे पास जो ये टाइट जंक्शंस हैं, इनका बहुत सिंपल सा रूल यही है कि दे प्रिवेंट द ल्यूमिनल फ्लूइड फ्रॉम लीकिंग आउट ऑफ द ल्यूमेन। ऐसे पतली गली से जो निकलने वाला तरीका है ना, उस गली को ये लोग ब्लॉक कर देता है, ठीक है ना। हमारे पास माइक्रोविलाई हम डिस्कस कर चुके हैं, दे वुड इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और कल हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के लिए और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होंगे? प्रोटीन्स होंगे। सो यहाँ पर वो प्रोटीन्स होंगे। सो वी वुड से दैट द माइक्रोविलाई आर बेसिकली इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द मूवमेंट ऑफ थिंग्स फ्रॉम वन ल्यूमिनल फ्लूइड एंड टू द ब्लड। अच्छा जी, फिर हमारे पास यहाँ पर अब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव प्रोसेस था कि पैसिव प्रोसेस था? अल्लाह मियाँ, आप लोग पोल्यूटेड एयर और पेट्रोल पे चले गए हो। कैन वी कम बैक टू बायोलॉजी? चलो समझ बॉन्ड भी आ गई। फ्री प्रमोशन हो रही है हर चीज की, हर किस्म की एडहेसिव की फ्री प्रमोशन कर रहे हैं हम लोग। ओके, नाउ टेल मी, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव है या फिर पैसिव है? गुड एमआर, इट इज एक्टिव। अगर एक्टिव प्रोसेस है तो हमें एटीपी चाहिए होगा। एटीपी सिंथेसिस कहाँ पर होता है? कौन सा ऑर्गेनील है जिसको हम बचपन से पावर हाउस ऑफ द सेल बुला रहे हैं, जिसकी सारी, जिसको देख के हमारी सारी पावर, ब्रेन पावर चली जाती है जब रेस्पिरेशन का चैप्टर स्टार्ट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी एग्जैक्टली, माइटो भाई जिंदाबाद। तो अब हमें एक्टिव प्रोसेस करवाना है, तो हमें माइटो भाई चाहिए होंगे। थैंक यू सो मच हुएवर गिव द वर्ड माइटो भाई। अब मैं यही वर्ड बोलने वाली हूँ। सो हमें चाहिए होंगे माइटो भाई, क्योंकि जरूरत है उनकी। तो माइटो भाई हमारे पास अच्छे बच्चे हैं, वो हर जगह काम आते हैं जब भी हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो हमारे पास इन सेल्स के पास बहुत ज्यादा क्या होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया बेचारे का एक ही काम है, हर जगह provides energy in the form of ATP for energy consuming processes. So these cells would be having abundant माइटोकॉन्ड्रिया। एक्टिव क्यों होगा ये हम कल जब पढ़ेंगे कहानी तो हमें समझ आएगा कि हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा होगा चीजों का, और पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा होगा। अच्छा जी, आई थिंक सो सारी तो चीज हमने कर ली है। माइक्रोविलाई हो गया। अच्छा, ये जो हमारे पास चीज है इनको प्लीज, इस वाली चीज को कोई माइक्रोविलाई ना लिख कर है, ये माइक्रोविलाई नहीं है। माइक्रोविलाई की ऐसे हिल लाइक शक्ल होती है, ठीक है, कि ब्रश बॉर्डर बनाते हैं। तो जो पेंट ब्रश होता है ना, या जो फ्लैट ब्रश होता है, उसके जो वो होते हैं, ब्रिसल्स होते हैं, तो हमारे पास क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर बनाते हैं। ये हमारा ब्रश बॉर्डर नहीं है। इनको हम क्या बुला रहे होते हैं? इनको हम बुला रहे होते हैं इनवेजिनेशंस। So these are your invaginations. इनका बिल्कुल वही काम है माइक्रोविलाय वाला, कि दे बेसिकली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द ट्रांसपोर्ट। बट क्योंकि हमारी इनकी जो शक्ल है वो माइक्रोविलाय से नहीं मिलती, तो माइक्रोविलाय की फैमिली ने बोला कि नहीं, हम इन्वेजिनेशंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये हमारे खानदान का हिस्सा नहीं बन सकते। तो बेचारों को एक अदर फैमिली टाइटल नेम निकालना पड़ा, जो कि है इन्वेजिनेशंस। काम दोनों सेम कर रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। मेम्ब्रेन हमारे पास फोल्डेड हो रही है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, लेकिन शक्ल मुख्तलिफ है। तो एक है माइक्रोविलाई की फैमिली, एक है इन्वेजिनेशन की फैमिली, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारे पास। या दैट्स अबाउट इट। कैपिलरी नेटवर्क है। कैपिलरी नेटवर्क का क्या काम है हमारे पास? इन्वेजिनेशन मतलब ये चीज है आपकी इन्वेजिनेशन, जिसको मैंने जूम किया है, जो अभी तक आप लोगों के पास जूम नहीं हो पा रहा है। बट दिस थिंग, डिजिट लाइक थिंग, दिस, इस तरह की फ्लैटेंड फोल्डिंग होगी तो हम उनको इन्वेजिनेशंस बुलाएंगे। ये जो रिजेस बन रहे हैं ना, दीज आर योर इन्वेजिनेशंस। नहीं नहीं, ये इन्वेजिनेशंस है, इमेजिनेशन नहीं है।
ठीक है। अगर कोई पूछे कि कैपिलरी नेटवर्क क्यों होना चाहिए कंटिन्यूअस विद द ट्यूबुलर सेगमेंट, तो क्या जवाब देंगे हम? Why is a capillary network important? Yeah, so basically exchange of substances के लिए important होना चाहिए. The capillary network carries away the materials that have been reabsorbed. Exactly, exchange of substance के लिए carries away the reabsorbed substances. वही purpose होता है capillary network का. Yeah, that's about it for today. Any questions?